تو اب ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طاہر حنفی صاحب. میں طاہر حنفی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام باسط صاحب، آپ کا اور ٹی وی ون یو ایس اے کا شکریہ کہ مجھے آپ نے ایک رفیق کار کے طور پہ رفاقت کے موضوع پہ گفتگو میں شریک کر لیا. جی جی. لیکن آپ کی باتیں سن کے مجھے یہ بھی لگا، مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا اچھا. جو میرے کسی مجموعے میں اس لیے شامل نہیں ہے کہ میرا نقطہ نظر رفاقت کے بارے میں مختلف ہے. اچھا. تو میں پہلے شعر آپ کو عرض جی جی کروں، پھر جی ہم جی بات کر لیتے ہیں جی. کہ کروں تو کیسے کروں اس کو یار میں واپس. اچھا. کروں تو کیسے کروں اس کو یار میں واپس، میرے رفیق کے ہاتھوں سے زہر آیا ہے. واہ واہ زبردست. آپ نے رخ جو ہے چینج کر دیا رفاقت کا. یہ کوئی اتنا زبردست ہے. بنیادی بات یہی ہے کہ میرے خیال میں جی آپ کسی کے ساتھ رفاقت کا بندھن باندھنے سے پہلے جی اپنے آپ کے ساتھ اپنی رفاقت ڈیولپ کریں. کیا ہم اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اپنے آپ سے محبت کر سکتے ہیں، واسطے داری کر سکتے ہیں، تو ہم کسی دوسرے کا بھی خیال کر سکتے ہیں، اور وہ خیال رفاقت کی صورت میں ہو سکتا ہے. بالکل جی بالکل بالکل. صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ کے جو مہمان ہیں، آپ ان سے اگر اجازت ہو اور آپ کے ناظرین سے، تو اپنے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ پوچھیے گا کہ کیا ہم نے اپنے لیے کوئی وقت نکالا؟ 24 گھنٹوں میں اگر ہم 5 منٹ اپنے آپ کے رفیق کار نہیں بن سکتے، تو میں 23 گھنٹے اور 55 منٹ کسی اور کا رفیق کیسے بن سکتا ہوں؟ نہیں، میں آپ کو طاہر بھائی ایک بات ایمانداری سے بتاؤں کہ میں اپنے لیے میں تو کرتا ہوں، کیونکہ ہم لوگ شاعری کرتے ہیں تو ہم اپنا وقت اپنے آپ کو دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے یہ لوگ بھی دیتے ہوں گے. بہرحال مجھے آپ کا تھوڑا سا تعارف کرانا ہے اپنے ناظرین سے کہ ناظرین، آپ نے گفتگو سے اندازہ کر لیا ہوگا کہ کس کمال کی شخصیت ہیں طاہر حنفی صاحب، اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں. ہمارے ساتھ طاہر بھائی یہ جو ہیں عظما ہیں اور سہیل امتیاز صاحب ہیں. ویلکم ٹو دی شو طاہر بھائی. یہ بھی آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں. تو آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ بات کیجئے. طاہر بھائی سے کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا کچھ جی فرمائش؟ جی بالکل طاہر بھائی، آپ ہمیں کوئی اپنی فیوریٹ سی پومس سنائیے. آج یہاں پہ ہم سننا چاہ رہے تھے کوئی جو آپ کی فیوریٹ ہو، آپ کے لیکن دل کے اس سے قریب پہلے ہو. آپ رفاقت میں بات کرنا چاہیں تو آپ ضرور کیجئے، بات ہاں کیجئے. بالکل بالکل آپ کر جی سکتے ہیں. آپ اپنا نظریہ بھی پیش کر سکتے ہیں. آپ کیا فیل کرتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیے، رفاقت کے حوالے سے مجھے اپنا ایک شعر، یہ بالکل آپ سمجھیے کہ جب باسط بھائی کا حکم آیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ تکلف برطرف رکھنا ہے، تو کچھ شعروں کی آمد ہو گئی. اور پھر چونکہ میرا آنا جانا ہیوسٹن میں لگا رہتا ہے، تو میں کسی اپنے بہت پیارے سے رفیق کار کو ناراض نہیں کر سکتا تھا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. لہذا ایک شعر آپ سنیے. کب تک خفا رہے گا تو اپنے رفیق سے، واہ، کب تک خفا رہے گا تو اپنے رفیق سے، تو اپنے رفیق سے طاہر انا کو چھوڑ ہاں تو تبدیل ہو کے دیکھ. تو تبدیل ہو کے دیکھا. رفاقت کا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ بالکل اس ہے، میں ہمیں بالکل. ایک دوسرے کو برداشت اور رواداری سکھاتا ہے. ہمیں اگر میں اپنے رفیق کو برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں تو یہ کبھی یک طرفہ ٹریفک نہیں ہو سکتی. صحیح کہا. یہ ہمیشہ سے دو طرفہ بات ہوگی. جی، یہ بات تو ہوئی ہے، میری عظما سے بھی ہوئی تھی. عظما نے بھی یہ سوال اٹھایا تھا. لیکن یہ ہے کہ یہ کیونکہ سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کا ہے، کلام اساتذہ کا، تو ہم چاہیں گے کہ اپنی آپ کوئی غزل یا نظم سنائیے. ہم میں سب یہ جو ابھی میں نے آپ کو شعر عرض کیا، یہ بالکل تازہ. نئی غزل ہے، اور یہ میرے آنے والے جو مجموعہ کلام ہے یرغمال خاک، یہ اس کا حصہ ہے. تو یہ دیکھیے گا شعر. اترا ہے چاند آنکھ میں تو جھیل ہو کے دیکھ،
उतरा है चांद आंख में, उतरा है चांद आंख में, तू झील हो के देख, वाह तरसी हुई जमीन की तकमील हो के देख। क्या बात, वाह जबरदस्त। तरसी हुई जमीन की तकमील तकमील हो हो के के देख, सीने में दिल धड़कते हैं, सुन इनकी धड़कनें। वाह, जबरदस्त। सीने में दिल धड़कते हैं, सुन इनकी धड़कनें, खुद से मोहब्बतों की तू तरसील हो के देख। वाह वाह, जबरदस्त। जबरदस्त। खुद से मोहब्बतों की तू तरसील तरसील हो हो के के देख, और तुझ पर खुलेंगी दर्द व अजियत की सब रुतें। वाह, तुझ पर खुलेंगी खुलेंगी दर्द व अजियत की सब रुतें, तू हिजरतों की रात में तश्कील हो के देख। क्या बात है, क्या बात जबरदस्त, है, क्या बात तश्कील हो तू के, हिजरतों की रात में तश्कील तश्कील हो के देख, और फिर देख तुझ पे करता है वो फैज किस तरह। क्या बोलता हुआ मिसरा है जनाब, वाह वाह फिर वाह। देख तुझ पे करता है वो फैज किस तरह, तू किबरिया के हुक्म की तामील हो के देख। तामील हो के देख, वाह, वाह वाह, जबरदस्त, बहुत तू अच्छा। किबरिया के हुक्म की तामील तामील हो के देख। और ये शेर शायद आपके दिल को छू जाए कि जम करके अपने आप को मेरे वजूद में। क्या बात है, सोहेल साहब, जी जी। जम करके अपने आप को मेरे वजूद में, एक बार मेरी रूह में तहलील हो के देख। तहलील हो के वाह, देख, जबरदस्त। वाह वाह। जबरदस्त। एक बार जबरदस्त। मेरी रूह में तहलील हो के तहरीर देख, होके देख। वाह वाह, एक क्या बार मेरी रूह में तहलील हो के देख। और शायद ये कैफियत रफाकत का एक नया पहलू हो सकती है। जी जी। नहीं वो तो शायर जो है वो तो पहलू तलाश कर लेता जनाब, वो तो एक निकाल लेता है। दैट इज ट्रू। जी, ये तो जी, बहुत, ये हकीकत है वैसे। आपकी बहुत मेहरबानी। और आपकी अच्छा, हौसला आपने अफजाई का आपकी शुक्रिया। चार किताबें हैं ना आपकी। पहली एक हमने 2 किताबों की तो हमने भी मेरा ख्याल है रूनुमाई की है आपकी किताबों की यहाँ पे ह्यूस्टन में। 4 किताबें आपकी कौन कौन सी हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। मेरा पहला शेरी मजमुआ शहर नारसा था, जी जी जिसकी ह्यूस्टन में बासित साहब ने एक बहुत तकरीब की पजीराई की। और उसकी डिस्टिंक्शन ये है कि वर्क डे पे ह्यूस्टन में इतना बड़ा अदबी प्रोग्राम इससे पहले शायद नहीं हुआ था। तो मेरे लिए ये बहुत तमानियत का लम्हा था। दूसरी मेरी किताब गूंगी हिजरत है, जो 2019 में शाया हुई। पिछले बरस 2020 में मेरी एक और किताब खाना बदोश आंखें के नाम से शाया हुई, जिसके बारे में बासित साहब का हुक्म ये है कि शायद अगले एक आध महीने में हम ह्यूस्टन में उसके बारे में कोई मिल बैठेंगे और दोस्त उस पर बात करेंगे। जी जी। और जो मेरी जो कोविड के हालात ने हमें सबको इतना महदूद भी कर दिया और लामहदूद भी कर दिया। दैट इज जी, ट्रू। ये तो बहुत सच है, ये हकीकत सही है। बात तो उस महदूद और लामहदूद के दरमियान की कैफियत में जो मैंने शायरी की उसको एक मजमूए की शक्ल दे दी है। उसका नाम है जरगमाल खाक, और जो भी मैंने आपकी खिदमत में गज़ल अर्ज की वो उस किताब का हिस्सा है। जी जी। और चूँकि हम अभी जिस कैफियत से गुजर रहे हैं बहैसियत इंसान, उसको मैंने इस शेर में ढालने की कोशिश की है कि आप ज़रा देखिएगा कि हर बस्ती का रहने वाला है अपने आलात में गुम। हर बस्ती का रहने वाला है अपने हालात में गुम। हर बस्ती का रहने वाला है अपने आलात में गुम। बिल्कुल, ये बहुत सच है। उसको ये मालूम नहीं हो जाएगा आफात में गुम। क्या बात है। हम सबकी जिंदगी तो एक टेलीफोन की के अंदर सिमट के रह गई है जी। दैट इज ट्रू। और ये शेर देखिएगा कि मुझ पे मालिक की ये खास इनायत करम नवाजी है। जी। मुझ पर मालिक की ये खास इनायत करम नवाजी है। दुनिया अफरा तफरी में है,
और हूं मैं आयात में गुम। क्या बात है, वाह। वाह जबरदस्त। दुनिया अफरा कोरोना ने तफरी में है आपको और मैं हूँ आयात इस में गुम। जगह पे ला के पहुंचा दिया कि शायर मेरे जैसा खाक नशीन ये कहता है कि मुझ पर मालिक की ये खास इनायत करम नवाजी है, दुनिया अफरा तफरी में है और हूं मैं आयात में गुम। और अब तो मेरा हाल भी मुझसे अनजाना हो जाता है। क्या बात है, वाह वाह। अब तो मेरा हाल भी मुझसे अनजाना हो जाता है, अब तो अक्सर हो जाता हूँ यादों की बारात में मैं गुम। गुम, वाह। वाह यादों की जबरदस्त। बारात में गुम। और ये शेर देखिएगा बासित भाई के, तुम आए तो बारिश का ये मौसम मुझसे रूठ गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। तुम आए तुम आए तो तो बारिश का। बारिश का ये मौसम मुझसे रूठ गया, बात तुम्हारे हो जाऊंगा अशकों की बारात में गुम। वाह 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 वाह। क्या बात है। बात जबरदस्त। तुम्हारे हो जाऊंगा अशकों की बरसात में गुम। अशकों की और बरसात में तुम गुम। या और ये वही शहर है जहां पे जुल्म की नदियां बहती थी। हम्म, ये वही शहर जहां पर जुल्म की नदियां बहती थी, इस काबिल ही लोग थे ये, तुम किन की हो अमवात में गुम। और ये देखिएगा कि तुम भी उसकी याद को एक दिन दिल से नोच के फेंकोगे। वाह। ये देखिएगा रफाकत का एक और एंगल, जी जी। तुम भी उसकी याद को एक दिन दिल से नोच के फेंकोगे, तुम भी एक दिन हो जाओगे इन दिलकश बागात में गुम। इन दिलकश बागात में गुम, वाह। जबरदस्त। और इसका मक्ता है कि ताहिर हम दोनों ने काफी हिजर की सख्ती सह ली है। ताहिर हम दोनों ने काफी हिजर की सख्ती सह ली है, आओ दोनों हो जाते हैं आज इस चांदनी रात में गुम। वाह, बड़ा रोमांटिक वैसे शेर बाय है। द वे इस वक्त इस्लामाबाद में बाहर चांदनी रात ही है। हाँ, मैंने कहा बड़ा रोमांटिक आपका शेर है ये। बहरहाल जी हाँ। शायर तो होता ही रोमांटिक है। सुहेल, आप कुछ पूछना चाहेंगे ताहिर भाई से, को बात करना चाहेंगे? ताहिर साहब माशाल्लाह आपकी शायरी सुनी, बहुत दिल को लगने वाली है। तो आपकी ये जो 4 आपने किताबें आपकी आई हैं उनके आपने नाम नहीं बताए। नहीं, नाम बताए इन्होंने। बताए? हाँ जी जी अच्छा जी जी, सही। नाम बताए हैं इन्होंने, वो गूंगी हिजरत और शायर नारसा। मेरी जो किताबें है ना जी, उसका तो जो यहाँ मेरा पर अदबी अवेलेबल सफर है है बुक्स आप? वो शहर नारसा से शुरू हुआ, गूंगी हिजरत पे रुका, अच्छा फिर खाना बदोश आंखें सही, उसकी यहाँ तलाश की अवेलेबल निकली है और यहाँ अब पर। जाके वो जरगमाले खाक पे रुक गया। वो खाना बदोश आंखों पे ताहिर भाई, बुक स्टोर्स में। वो मेरा भी एक शेर है कि खाना बदोश आंखें कैसे करेंगी वादा, खाना बदोश आंखें कैसे करेंगी वादा, ये दिल लगी है प्यारे ये दोस्ती नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जबरदस्त। जहां से वो खाना बदोश आंखें का नाम मैंने डिराइव किया ना, जी जी, उस गजल से मैं आपका हुक्म है, एक दो शेर आपको मैं अर्ज करता हूँ। जी जी, इरशाद जी इरशाद। सुनाइए, पागल बिल्कुल सी हो रही हैं खाना बदोश आंखें, वाह वाह। पागल सी हो रही हैं खाना बदोश आंखें, क्यों जाने रो रही हैं खाना बदोश आंखें। हाँ, सोचा है तुझको शब भर जागी है रात सारी, सोचा है तुझको शब भर जागी है रात सारी, अब थक के सो रही हैं खाना 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 बदोश बदोश आंखें। आंखें। जबरदस्त। अब थक के सो रही हैं खाना बदोश आंखें। खाना